Good morning and namaskar everyone. How are you all? Fantastic, sir. How are you, sir? I'm also fantastic. Okay. So last we have done with the icon part of the chapter number 10, right? Okay, is there any doubt in the homework part, guys? No, sir. Oh, okay. And it is good. Okay, so then after the next topic is conversion of Sir, I have doubt. yes. Sir, in question number 5 or 6. Question number 5 and 6. Just a minute. Yes, in question number 5 it is like that. Two strings length उसको combine कर रहे हैं. That means combine कर रहे हैं, उसका meaning उन दोनों का addition होगा. So addition उसका इस तरह से हो सकता है 4 meter and 84 centimeter. वो उसका addition होगा. Then and give your answer in the centimeter. So that means हमें वो जो 4 meter है उसको centimeter में convert करना पड़ेगा. Like that. Huh? So likewise that you have to give the answer of that one. And the sixth one is like that. Rajat father bought. उसमें ऐसा बोला है कि उसने 10 kg and 500 ग्राम एप्पल लेके आए थे and 2 kg and 700 ग्राम मैंगोज लेके आए थे. तो इसमें से क्या सबसे ज्यादा होगा? ऑब्वियसली एप्पल. और कितना? दैट मीन्स उसमें सब्ट्रैक्शन करना है. तो अगर उन दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन कर लेगा तो पता चल जाएगा कि एप्पल जो है वो कितना ज्यादा है. That's it. Okay, guys. Any other doubts? No, sir. Okay. Okay. Then yes. So today is after that. This topic we have already discussed in the 4th standard only, and also it is repeated in this one. So probably इस बार आपको इतना ज़्यादा पहले बार इतना प्रॉब्लम आया था उतना इसमें नहीं आएगा. Conversion of unit. I'm drawing table over here, guys. So that table is already given in the textbook also. Then, so yes, then also you have to draw it in a notebook. That table I'm drawing over here. Pay attention here. Okay, I have written down in the numbering form, just like thousands, hundreds, tens, ones. उसके बाद tens आता है, उसके बाद hundreds आता है, and last is the thousands. That is the first row. Next row is given about the value of that one. So value obviously we know that ones की value 1 होती है, tens की 10 होती है, hundreds की जो है वो 100 होती है और 1000 की 1000 होती है, और tens की जो है वो 1/10 होती है, या फिर 0.1 भी हम बोल सकते हैं. 100 की है वो 1/100 होती है और 1000 की है वो 1/1000 होती है. And so these are the value of them. And after it is for the prefix. Prefix सबसे पहला prefix जो होता है वो standard unit यहाँ काम करता है.
उसके मीन्स जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है दैट इज उसके आगे कोई प्रीफिक्स नहीं होता, वो स्टैंडर्ड यूनिट या फिर यूनिट जो हम बोलते हैं दैट इज ओवर हियर। देन आफ्टर उससे जो बड़ा वाला होता है 10 टाइम्स दैट इज वी कॉल डेकामीटर और सॉरी डेका ओनली, you can write that prefix like that one डेका। उसके पहले वाला जो होता है दैट वी कॉल हेक्टो, उसके पहले वाला जो होता है उसको बोलते हैं किलो। These are the prefix। हाँ, ये स्टैंडर्ड यूनिट से जो छोटा होता है 10 टाइम्स छोटा उसको हम बोलते हैं डेसी। टर्न ऑफ योर माइक हुआ इज ऑन। उससे भी छोटा जो होता है उसको हम बोलते हैं सेंटी, एंड उससे भी जो छोटा होता है सबसे छोटा दैट इज व्हाट वी कॉल एज अ मिली। देन now then after the units we are writing down one by one। तो सबसे पहले जो सारे यूनिट्स आते हैं उसमें सबसे पहले हमें अगर हम डिफरेंशिएट करें तो सबसे पहले हम लेंथ का लिख रहे हैं यहाँ पर। तो लेंथ का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो मीटर होता है, उससे 10 टाइम्स बड़ा जो होता है उसको हम डेका मीटर बोल सकते हैं। देन डेका व्हाई वी आर राइटिंग डाउन फर्स्ट डेका बिकॉज इट इज प्रीफिक्स, एंड उसके बाद स्टैंडर्ड यूनिट लिखना है दैट इज मीटर। सो डेका मीटर that we write like that DAM। Why DAM? Because उससे जो छोटा यूनिट है उसको हम डेसीमीटर बोलते हैं, इसलिए उसका हम DM लिखेंगे। तो इसलिए यहाँ पर दोनों DM नहीं चलेंगे, दैट्स व्हाई इसमें हमने A ऐड कर दिया। तो ये आपको याद रखना है, जब DA होगा तब वो डेका होगा, डेसी नहीं होगा। हेक्टोमीटर मीन्स फॉर दैट HM। आगे वाला जो वर्ड है वो सॉरी आगे वाला लेटर है वही लगा। किलोमीटर इट इज km that we know, centimeter is cm that also we know, and millimeter is mm that is also we know। Yeah? Generally in the length we just use mostly these 3 units, sorry 4 kilometer, meter, centimeter and millimeter। ये मेनली यही 4 यूनिट्स हमने इसमें यूज किए। ओके उसके बाद आता है वेट। तो जो वेट का स्टैंडर्ड यूनिट है वो होता है ग्राम, उससे बड़ा वाला डेकाग्राम, उससे भी बड़ा वाला हेक्टोग्राम और सबसे बड़ा केजी किलोग्राम। एंड आफ्टर उससे छोटा वाला ग्राम से छोटा वाला जो होता है वो इट इज डेसीग्राम, उससे भी 10 टाइम्स छोटा, इट मीन्स ग्राम से 100 टाइम्स छोटा इट इज सेंटीग्राम, and gram से 1000 times छोटा that is milligram mg। So in this one we use this 3 main kg, gram and milligram, ये सबसे ज्यादा यूज करते हैं रेगुलर। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज कैपेसिटी। Okay. So for the capacity standard unit you know that is liter, and so जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो लीटर होता है। उससे 10 टाइम्स छोटा जो होता है उसको हम डेका लीटर बोलेंगे, उससे 100 टाइम्स छोटा होता है सॉरी बड़ा होगा, ये 10 टाइम्स बड़ा, उससे 100 टाइम बड़ा जो होगा उसको हम हेक्टोलीटर बोलेंगे, और उससे 1000 टाइम जो बड़ा होगा दैट इज वी कॉल अ किलोलीटर। तो 10 टाइम्स जो छोटा होगा लीटर तो हम डेसीलीटर बोलेंगे, 100 टाइम उससे छोटा उसको हम सेंटीलीटर बोलेंगे, और 1000 टाइम्स से छोटा उसको हम मिलीलीटर बोलेंगे। सो इन दिस वन मोस्टली हम दो ही टाइप के यूज करते हैं दैट इज लीटर एंड मिलीलीटर। केजी किलोलीटर भी बहुत ही कम यूज होता है। डन। सो दिस इज अ टेबल, अंडरस्टूड दिस वन? Yes. ओके Yes, sir. ओके। सो यहाँ पर वो कंपैरिजन दी हुई है कि अगर ये 1 है तो ये 1 की कंपैरिजन में बाकी सब जो है ये
वो किस तरह से कंपेयर कर पाएंगे, इसलिए वही मैं बोल रहा भी था आपको। ये 1 है तो उसके कंपैरिजन में ये 10 टाइम्स है, उसके कंपैरिजन ये 1 के कंपैरिजन में ये 100 टाइम्स है, उसके कंपैरिजन में ये 1000 टाइम्स। अगर ये 1 है तो ये उसका 10th होगा, ये 1 है तो ये उसका 100th होगा, ये 1 है तो ये उसका 1000th होगा। लाइकवाइज दैट। अंडरस्टूड? Yes, sir. Okay. And draw this table in your notebook and do it with the pencil. ड्राइंग पेंसिल से करना, अगर आप लिख रहे हो अंदर वो चलेगा आपको। सर ये नोट्स but- पार्ट है ना? हाँ, yes, it's not. हम अभी करते हैं। Yes, use the scale and pencil for drawing the table. हाँ, सर ये नोट्स है ना? हाँ बेटा, ये नोट्स। Okay, done guys, can I erase it? No. No, sir. No, sir. Okay. Okay, done everyone? No. No, sir. Okay.
Sir, done. Okay. Sir, my work is done. Okay. Okay, done now. 2 minutes, sir. Okay. 2 minutes, sir. Sir, my work is done. Sir, my work is done. Okay. Sir, my work is done. Okay. Sir, you can erase it. Okay. No, sir, 1 minute. Sir, my work is done. Okay, I'm erasing it now. Okay, so this is the basic idea of the conversation, that what is the value of all the units compared to each other. रिलेटेड टू दैट हमने पहले भी ये ऐसे टेबल्स बनाया था. Okay, one more thing I'm explaining to you guys. See that properly. Now how that it is conversation, we can say that it can be done. See, I'm writing down for one of the unit only, which is you can say that length, and बाकी सब में उसी तरह से ही होता है. तो सिर्फ मैं एक ही यूनिट के रिलेटेड लिख रहा हूँ. दिस इज कंटिन्यू विद द नोट्स ओनली. Okay, so unit is meter, then after decameter,
Okay, let me write down some speed. Just a minute. Okay. So meter, decameter, 2 meter, kilometer. Over here, decimeter, centimeter, and millimeter. And I am just representing all of them as per the value. अगर हमारे पास है फॉर एग्जाम्पल, आपको एक चीज इसमें याद रखनी है कि जब भी हम बड़े क्वांटिटी से में से छोटी क्वांटिटी में अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं, so at that time we have to do the multiplication. Say for example, अगर हमें किलोमीटर से मीटर में जाना है, so we have to multiply it with the 1000. और सबके सब में मीटर की कंपैरिजन में लिख रहे हैं, बिकॉज मोस्टली हमें उसी तरह से कंपेयर करना रहेगा. सेम वे अगर हमें हेक्टोमीटर में से मीटर में जाना है, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई विद 100. एंड डेकामीटर में से मीटर में जाना है, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई विद 10. राइट? You know guys that why we have to do it like that, because because of that the decameter is 10 times bigger than meter, hectometer is 100 times bigger than meter, and kilometer is 1000 times. Then same way if I want to go to meter, from meters, मीटर में से अगर हमें डेसीमीटर में जाना है, then I have to multiply it with 10, because it is 10 times bigger than meter, is 10 times bigger than decameter. Meter to centimeter multiplied with 100, and meter to millimeter multiplied with 1000. Okay, wait a minute. Multiplied with 1000. This is 10, this is 100. Right? Now ये हमने देख लिया कि जब कब मल्टीप्लिकेशन कब करना होता है. Now let's see that कि डिवीजन कब करना होता है. वो भी मैं इसमें रुको दूसरे में करवाता हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया रिलेटेड भी ना, दूसरे में आपको बाद में भूल जाओगे. से ये वाला मैं इसी में ही करवा रहा हूँ. यहाँ पर हमने क्या किया, इसमें हमने जो बड़े वाले यूनिट है उसको हमने कन्वर्ट किया मीटर में. अभी हम मीटर को कन्वर्ट करते हैं ये बड़े वाले यूनिट. सो जब छोटे यूनिट में से हम बड़े वाले यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, एट दैट टाइम वी हैव टू डू द डिवीजन. दिस वन वी हैव टू डिवाइड इट बाय 10. एंड इट मींस मीटर में से अगर हमें डेकामीटर में जाना है तो हमें मीटर को 10 से डिवाइड करना पड़ेगा. मीटर में से हेक्टोमीटर में जाना है, सो दैट वी हैव टू डिवाइड इट बाय 100. एंड मीटर में से अगर हमें किलोमीटर में जाना है तो वी हैव टू डिवाइड इट बाय 1000. आपको अगर आप दो में से एक भी चीज याद रखोगे तो भी चलेगा. देखो बाकी सब में ये उसका उल्टा ही है. अगर किलोमीटर में से मीटर में जाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है. अगर मीटर में से किलोमीटर में जाना है तो 1000 से डिवाइड करना है. सेम वे ये भी हमने इसमें किया कि हमने यहाँ पे क्या किया कि मीटर को हमने सब मीटर में से ये सब रिप्रेजेंट किया. मीटर को डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर में कन्वर्ट किया. अभी हम उन सबको क्या करेंगे, डेसीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं. तो डेसीमीटर में से अगर हमें मीटर में जाना है तो ये छोटा यूनिट है, ये बड़ा यूनिट है. क्या करना पड़ेगा, डिवीजन. यहाँ पे देखो मीटर में से डेसीमीटर मल्टीप्लिकेशन, डेसीमीटर में से मीटर डिवीजन, मीटर में से सेंटीमीटर 100 से मल्टीप्लाई, सेंटीमीटर में से मीटर 100 से डिवाइड. सेम वे mm टू मिलीमीटर में से मीटर,
So divide by 1000 like that. So that's how conversion works. This is I just have written guys for the length only. बाकी सब में वैसा ही सेम ही होता है. अगर मैं कैपेसिटी का लूँ तो इसमें सब की जगह मीटर की जगह पर यहाँ पर लीटर आ जाएगा. अगर मैं वेट का लूँ तो मीटर की जगह पर केजी आ जाएगा, सॉरी ग्राम आ जाएगा. बट रिलेशन इसी तरह से रहेगा सब में. अंडरस्टूड दिस वन गाइस? Yes, sir. Okay, write down this one guys. Sir, Yes. he said it into not. Sorry. Sir, not say a person. Your voice is not coming. Okay. Sir, is this a sir? सर वो कह रहे हैं कि ये पार्ट है वो नोट्स का ही है ना? बेटा मैं पहले ही बोला ये. Sir, my work is done. Okay. Sir, my work is done. Sir, my Okay. work is done. Okay, I'm erasing it. Anyone is remaining? Sir, terminate. Okay. Sir, my work is done. Sir, my work is done. Sir, my work is done. Okay. Okay guys, I'm erasing it. Huh? Anyone is remaining? Yes, sir. Yeah. Okay. Sir, my work is done. Sir, my work is done. Okay. Okay, I'm erasing it now. Sir, my work is done. Okay. Okay, after that, now we can start the exercise 10.1. The class C student, leave the class right now. Otherwise, मैं C आपका वाला क्लास आपको अटेंड नहीं करने दूंगा.
क्लास सी स्टूडेंट लीव द क्लास राइट नाउ, अदरवाइज आपका जो क्लास होगा वो मैं आपको अटेंड करने नहीं दूंगा। भव्य यू लीव द क्लास, अदरवाइज मैं आपका क्लास आपको अटेंड करने नहीं दूंगा। लास्ट वार्निंग आपके लिए। रुद्र अभिमान लीव द क्लास। सर कोई भी लीव नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट वाला क्लास उनका है तो उनका क्लास अभी वो अटेंड नहीं कर पाएंगे। Pay attention here guys, now we are doing the exercise 10.1 sorry. See that exercise. Okay, so the exercise is about convert this measurement. As question number 1 is about converting the small measurement to the bigger one. तो स्मॉल मेजरमेंट, स्मॉल क्वांटिटी है, उसमें से हमें बड़े वाले में जाना है। दैट मीन्स इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिवीजन करना पड़ेगा। तो आपको सिर्फ यही देखना है कि आपको किसका डिवीजन करना है। Okay, see the first one I am doing it over here. That is 39 centimeters into meter. 39 centimeter में से मीटर में हमें कन्वर्ट करना है guys. So that means obviously we have to divide it with the मीटर और सेंटीमीटर में बीच में क्या डिफरेंस है। 1 meter is equals to 100 centimeter, right? That we know. That is 100 cent, और हम अगर हमें कन्वर्ट करना है then we can write it like that. At 1 centimeter is equals to 1 by 100 meter. ये दूसरा वे है तो लिखने का है, तो हमने आगे लिखा था वो, बट वो अभी हमें नहीं लिखना है, हम रेगुलर ही लिखेंगे। हमें इतना पता है कि सेंटीमीटर में से मीटर में जाना है तो हमें 100 से डिवाइड करना पड़ता है। क्लास सी के स्टूडेंट लास्ट वार्निंग में अभी भी दे रहा हूँ, अगर आप अभी नहीं निकले तो आपका क्लास में ज्वाइन करने नहीं दूंगा। 39 divided by 100. So we just have to divide it. Guys, if you see that properly, then this one becomes as a fraction of this one. And यहाँ भी हमारा फ्रैक्शन में मिल गया और उसका आंसर क्या आएगा 0.39। इसका हमें कन्वर्ट करके डेसिमल में आंसर लिख लेना है। So that answer we got as a 0.39 meter. Right? So this is our answer. This kind of questions hasn't come yet because in the fourth standard में हमने fraction और decimal जो है वो ऐड नहीं किया था हमने इसके अंदर। Right? Okay. Write down this one guys. And question number 1 you have to complete it as a homework part. Remaining questions you can do it by yourself because they are not that much hard. Division ही करना है इसके जैसा ही। Excuse me, sir. Yes, beta. Sir, my work is done. Sir, where should we use this decimal and fractions? डेसिमल हमने यहाँ पे यूज किया ना, इन शॉर्ट आंसर हमें उसमें मिला ना। देखो फ्रैक्शन हमने वहाँ पे किया 39 by 100, उसका हमने कन्वर्ट करके डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। सो इट मीन्स दैट आई जस्ट वांट टू से दैट कि हमने ये वाला जो पार्ट था, इस तरह के क्वेश्चन जो थे वो हमने 4th स्टैंडर्ड में नहीं किए। तो इसमें सिर्फ यही एक चेंज है, उसमें हमें अगर हम आंसर मिलता था तो वो 1 के फॉर्म में हमें मिलता था। Sir, my work is done. Okay, after you done with your work, you can leave the class. Sir, my work is done. Bye, sir. In the home, meanwhile, we just have to complete Bye, the question. sir. Write down Sir. Just a minute. Complete question 1
of exercise 10.1 in appendix. Okay. That's it. Bye bye. Sir, Bye. Jeevan sir, have a nice day. Bye. Bye sir. Bye. Sir, Jeevan and H1. Side with all the questions. Bye sir, have a nice day. Okay, bye. Recorded.